Hello, good morning, student. Hello, good morning, student. Good morning, sir. Hello, hello, hello. Hello, sir. Yeah, okay, fine. कुछ नीट वगैरह जा रहा है. Okay, fine. Let's continue. Okay. So welcome back, Dr. Basa Ambedkar Mahathela Vasave, TYBSAT 5th SEM Subject Enterprise Java, presented by Assistant Professor Bipin P. Vaiti. We have to continue with your PDF Understanding Java Server. I think second unit we are completed, right? Yes. Hello. Hello. Yes, sir. Somewhat part it is left हाँ or सर completed. Completed, sir. हो गया है. हो गया ना? Okay. हाँ. लास्ट तक यहाँ पे एक मिनट. यस. Block oriented retrieve file customers are creating Java. Yeah, yes, it is completed. Okay. So third, now understanding Java server page. Today we have to take up to 10:15 क्योंकि because now exam is going on, ATKTA first sem and third sem. So I have to upload the email and paper also. So that's why I am taking up to 10:15. Okay, is it clear? Because the next paper now, first paper I already uploaded, but second paper I have to email and upload it. Okay, yeah, clear. Okay, fine. We have to continue, but unit 3 हम लोग को करना है क्योंकि because now only we have the 15 to 20 days in the hand to complete our portion. Okay, related doubt and all that. Mostly we are completed up to unit 4, but unit 5 is left. But now we are taking the revisions of theory because I think this time also maybe we are getting the objective paper that we cannot guess. After circular INA, they have the meeting with the principals and university.
but we don't know exactly what we have to do in the exam. हेलो सर किधर गए? पता नहीं कहाँ गए, लगता है कि वो नेटवर्क इशू रहेगा उनका। हाँ लगता तो यही है। आगे सर आगे। आगे से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूटेड हो। ओके Yes, फाइन। sir. ठीक है लास्ट टाइम हम लोग ने जेएसपी किया था क्या, कंटिन्यू किया था? हेलो नहीं आवाज सर। में? हाँ ये नहीं किया था, कंटिन्यू हो चुका था हम लोग का? नहीं ना, नहीं सर, स्टार्ट ही नहीं किया हमने थर्ड स्टार्ट ही चैप्टर। नहीं किया था। ओके फाइन, चलो नाउ JSP. See, JSP technology is used to create the web application just like servlet technology. It is an extension to servlet because it provides more functionality than servlet, such as expression language and jest. What do you mean that? Without servlet file, servlet is a specially we are creating पहले design करते, then we are giving in the actions, calling the class file of the servlet, and then it will appear in the JSP when we are clicking on the submit button, or we are giving some actions over there. So that is servlet. But without servlet also we can do the server side script, and that is a technology JSP. It is used to create the web end, यानी कि डिजाइन बनाने के लिए काम आता है। ऑल्सो सर्वर साइड कुछ भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हो विदाउट सर्वलेट. So it is an just extension to servlet. It is a just extension to servlet. Servlet को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है. आप डिजाइन करते करते ही servlet को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो. That is why it provides more functionality than servlet, and it is an expression language or Java server tag libraries language. So they are given expression. मतलब जैसे हम लोग कैसे ग्रामेटिकली और सिंटैक्स बढ़ाते हैं इंग्लिश में, और ग्रामर हम लोग देते हैं, तो उससे हम लोग और विजार्ड व्यू से हम लोग रेडी कर सकते हैं. ऐसे टैग खुद के टैग बना के वगैरह, तो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जेएसपी में. इट कंसिस्ट ऑफ HTML टैग्स, नॉर्मल HTML टैग्स. ओके, तो हम लोग को नॉर्मली HTML की तरह ही होता है, बट यहाँ पे HTML की तरह हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो कोडिंग हम लोग को स्क्रिप्टिंग में देनी है वो सेपरेटली हम लोग JSP टैग में देते हैं. So JSP pages are easier to maintain than servlet because we can separate designing and development. हाँ बराबर है, क्योंकि आपको JSP में जो सर्वलेट वाली जो फाइल है वो अलग होती है, उसमें हम लोग को दोनों फाइल मैचिंग करके देखना पड़ता है. यहाँ पे हम लोग को वी आर सेपरेटली डिजाइन करते हैं और डेवलपमेंट भी सेपरेटली करते हैं, बट उसके अंदर हम लोग को उसे कस्टम टैग के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं. So it provides some additional feature in the expression language and custom tag. So they are given. तो अभी हम लोग को ये JSP करता क्या है, उसके फीचर्स क्या है वो बताया. Why we are using JSP? First of all,
एडवांटेजेस, एक्सटेंशन टू सर्वलेट, इजी टू मेंटेन, फास्ट डेवलपमेंट एंड लेस कोड देन सर्वलेट। ये फीचर की वजह से जेएसपी सर्वर अपलोड करने के लिए टाइम लेता है, लेकिन जेएसपी में जैसे हम लोग देखो एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इज इजी, बट एचटीएमएल में एएसपी करते हैं तो एचटीएमएल और एएसपी लोडिंग करने के लिए टाइम लेता है। ओके, तो दिस इज द, और उसी तरह यहाँ पे भी जावा के अंदर जेएसपी करेंगे तो इट इज फास्टर, फास्ट डेवलपमेंट, लेस कोड देन सर्वलेट एंड इट इज इजी टू मेंटेन, बट सर्वलेट लोड टाइम लेता है। तो यस, इस फीचर की वजह से हम लोग जेएसपी यूज कर रहे हैं। व्हाट आर द फीचर? एक्सटेंशन टू सर्वलेट मतलब है क्या? It is an extension to servlet. We can use the following features servlet in JSP. Just we can use implicit object, explicit नहीं, implicit. Implicit का मतलब है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग वो कोडिंग टैग जो भी है वो एक बार ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे ही यूज कर सकते हैं, उसके बाहर दूसरे फाइल में यूज नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, प्री डिफाइंड टैग, खुद के टैग्स लिख सकते हैं, ए बी सी डी लाइक दैट, कस्टम टैग बना सकते। एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एक्सप्रेस करना पड़ता है, लैंग्वेज को बताना पड़ता है, ए लेबल, बी लेबल, सी लेबल लाइक दैट। सो ये कस्टम टैग्स, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ये सारी चीजें आती है, वो एक्सटेंशन टू सर्वलेट है, दैट मेक जेएसपी डेवलपमेंट easy to maintain. बिजनेस लॉजिक विद द प्रेजेंटेशन लॉजिक इज सेपरेटेड इन। बिजनेस लॉजिक हमारा हो गया सर्वलेट, जिसमें आपको डायरेक्टली टूल्स आते हैं, प्रोसेसर, उसी का कोडिंग लिखना पड़ता है। दिस आर ऑल दैट बिजनेस लॉजिक। बट विद प्रेजेंटेशन लॉजिक आपको थोड़ा सा जेएसपी प्रेजेंटेशन लॉजिक कस्टम वाइज खुद के डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, सो वी कैन इजीली मैनेज वेब एप्लीकेशन कस्टम वाइज। So in servlet technology we mix our business logic with the presentation logic, but यहाँ पे presentation खुद का करके easily maintain कर सकते हैं, custom build कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने easy to maintain दिया। Next, fast development, no need to recompile and redeploy. If JSP page is modified, we don't need to recompile. एक बार हम लोग ने चेंज किया तो उसको रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी सेव हो गया, अपने आप यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है, वो रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं। एंड रीडिप्लॉय ऑल्सो नॉट, रिकम्पाइल रीडिप्लॉयमेंट वो पार्ट उसर नहीं है, इसीलिए वो फास्ट डेवलपर। सर्वलेट में कहाँ आता है, जब भी कोडिंग चेंज होता है वी हैव टू क्लोज द आउटपुट, वी हैव टू कंपाइल इट, सर्वर वो डिप्लॉयमेंट क्लास फिश सर्वर के साथ डिप्लॉय करता है और कंपाइल रिकम्पाइल करता है, देन जब उसका क्लास फाइल रेडी होता है तब वो लोड कर पाता है। दिस इज स्लो डेवलपमेंट। और जो जेएसपी है वो डायरेक्ट नो रिकम्पाइल नो रीडिप्लॉयमेंट, इसके लिए वो फास्ट डेवलपमेंट। सर्वलेट कोड नीड्स टू बी अपडेट एंड रिकम्पाइल इफ यू हैव टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ द एप्लीकेशंस, क्योंकि उसका लुक अलग है, उसका रिकम्पाइल करना जरूरी है, अपडेट होना जरूरी है। दिस आर ऑल द थिंग्स आर द लेस कोड देन सर्वलेट। आपका कोडिंग भी कम लिखना पड़ता है, बिकॉज इट कैन यूज मेनी टैग्स सच एज एक्शन टैग, जेएसटीएल, कस्टम टैग्स, ये सारी चीजें आपको आने वाली है, सो दैट रिड्यूसेस द कोड। दैट्स व्हाई वी कैन यूज एक्सप्रेशन लैंग्वेज, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्वियसली लेस कोड देन सर्वलेट हो जाता है। तो ये चार फीचर की वजह से इधर, तो व्हाट इज जेएसपी एंड फीचर ऑफ जेएसपी, दैट इज योर आंसर। डिसएडवांटेज, इसमें डिसएडवांटेज एक ही है, आपको बताया, आउटपुट इज एचटीएमएल व्हिच इज नॉट रिच इन फीचर। एचटीएमएल तरह नॉर्मल स्टैटिक पेजेस बना सकते हो आप, डायनामिक की तरह इंटरेक्टिंग पेजेस नहीं बना सकते हो ज्यादा, मतलब दिस इज डिजायर। डेटाबेस कनेक्टिविटी इज नॉट इजी, इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी भी इजी नहीं है, इट रिक्वायर मोर टाइम व्हेन एक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जब हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम में वो बहुत टाइम लेता है कनेक्टिविटी के लिए, और एक बार हुआ तो बाद में वो चलता है। सो दे हैव टू बी कंपाइल्ड ऑन द सर्वर, क्योंकि उनको जिस सर्वर का आपने डेटाबेस लिया है, एसक्यूएल, ओरेकल, मायएसक्यूएल, उस सर्वर को लोड होने के लिए, कंपाइल करने के लिए टाइम लेता है। डिफिकल्ट टू डिबग एरर, इसमें एक साथ डिजाइन और जेएसपी फाइल होने की वजह से एरर फाइंडिंग करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट JSP pages are not converted into servlet, वो servlet में convert नहीं होता। Clear? Is that clear? So यहाँ पे difference दिया हुआ है। It is an interface on the top of the servlet. It is translated into Java code. Okay? और Java code में compiler file Java.java, that is a JSP interface करके top of the servlet होता है, but
is translated into Java code. Servlet is a खुद का सर्वर साइड प्रोग्राम है, it is different. JSP run slower. अभी यहाँ पे उन्होंने स्लोअर किया होता है, रन स्लोअर, कंपाइल करना रन स्लोअर, और सर्वलेट रन फास्टर. यहाँ बताइए इन एमवीसी आर्किटेक्चर जेएसपी एक्ट एज अ व्यू, मतलब मॉडल, एमवीसी मतलब ही है मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर. नाउ मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर में हम लोग को हमेशा कैसे ऑब्जेक्ट को लेना और देना उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसका व्यू अलग होता है, वैसे आर्किटेक्चर में एक्ट होता है. यहाँ पे एमवीसी आर्किटेक्चर एक्ट एज अ कंट्रोलर, नॉट अ व्यू, क्योंकि डिजाइन पार्ट जेएसपी में होता है तो व्यू में वो डेवलप करता है, आर्किटेक्चर के इस कंसेप्ट में होता है. लेकिन यहाँ पे कंट्रोलर, सर्वर इज ऑलवेज कंट्रोलर. आप क्लिक करोगे सबमिट होगा तो उसके ऊपर एक्शंस क्या, कंट्रोलर ही देखता है. इट इज नॉट टेक द पार्ट ऑफ द व्यू, कैसे दिखता है क्या करता है उससे कोई उसका मतलब है. यहाँ पे इट इज इजी टू कोड इन जेएसपी में कोडिंग लिखना इजी है, यहाँ पे कोडिंग लिखना डिफिकल्ट है. It compiled into Java Servlet before execution. JSP हमेशा compile होता है Java Servlet, और एक बार हमें next time compile recompile करने की जरूरत नहीं. Servlet execute inside a web server, मतलब Servlet web server के अंदर ही execute होता है, इसके लिए उसको recompile और redeployment करने की जरूरत होती है. This is all that difference between the JSP and Servlet is given. Now life cycle, of course. Life cycle JSP it is given init, service और destroy method. ये तीन मेथड होते हैं. init के अंदर आपका क्या होता है, initialize the variable, जो भी पार्ट आपको initialize करना है, जैसे try, अभी हम लोग try सर्वलेट के अंदर try लेते हैं, try, catch और finally, राइट. यहाँ पे वैसे ही उन्होंने init, service और destroy. अभी init का मतलब initialize the service मतलब प्रोसेस, और destroy मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको क्लोज करना. तो इस तरह का वो मेथड यूज करके वो लाइफ साइकिल दिखा रहा है. तो यहाँ पे इट फॉलोइंग द फेजेस, जैसे ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी फेज डू लाइक दैट. एक कंपाइलेशन ऑफ जेएसपी, क्लास लोडिंग, आपको सबसे पहले क्लास लोडिंग होता है तो यूजिंग द क्लास लोडर फाइल, पहले ऊपर इंपोर्ट ऑफ दैट फाइल जो क्लास लोडर फाइल होते हैं वो होते हैं कंपाइलेशन. फिर इंस्टेंटिएशंस, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरेटेड सर्वलेट इज क्रिएटेड, उसके अंदर जनरेटिंग सर्वलेट, जनरेट सर्वलेट, नॉट अ एचटीटीपी सर्वलेट. जेएसपी में जनरेट सर्वलेट क्रिएट होता है, तो वो जनरेट सर्वलेट जो है वो जनरेटेड सर्वलेट हम लोग इंस्टेंटिएशंस मतलब वो हम लोग तुरंत नहीं करते, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे क्रिएट. और यहाँ पे एचटीटीपी सर्वलेट ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, वहाँ पे एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिस्पांस, भले रिस्पांस किया रिक्वेस्ट नहीं किया तो भी वो वहाँ पे हम लोग को लोड करना पड़ता है. Initialization, यहाँ पे container invokes the JSP init first, that is initialization. फिर request processing, that is JSP service method. फिर destroy, जो भी ऑब्जेक्ट ओपन होंगे वो क्लोज होंगे, that is container invokes the JSP destroy method. इस तरह वो ट्रांसलेशन करते रहता है. तो ये तीन मेथड में हमारा JSP काम होता है. How it is work, वो यहाँ पे उन्होंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है. Your computer create the JSP file translate, okay, in the servlet Java file, it is servlet Java file, but वो servlet file नहीं होती है, हम लोग JSP के थ्रू .java file बनाते हैं. फिर उसके बाद वो कंपाइलर फर्स्ट टाइम होता है और सबसे पहले कंपाइलर क्लास फाइल करता है. फिर जावा रन टाइम वो प्रोग्राम उस सर्वलेट ऑब्जेक्ट को देखता है, जिस सर्वलेट ऑब्जेक्ट को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया वही सर्वलेट ऑब्जेक्ट के कंटेंट आपको पीसी में दिखाई देते हैं. So this is the work of diagram it is shown. So JSP page is translated in the servlet by the help of JSP translator. It is a part of the web server which is responsible for translating the JSP page into servlet. After that, servlet page is compiled by the compiler and gets converted into class file. Moreover, all the processes that happen in servlet are performed on JSP later, and like initialization, committing, response to the browser, and then destroy. This all works later on. Later मतलब हम लोग बाद में करते हैं, later पहले नहीं होता. पहले वो परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसिंग पार्ट में वो JSP कंपाइलर करता है. जब उस सर्वलेट ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाता है तब वो इनिशियलाइज, कमिटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रॉय पार्ट चालू करता है. So this way it is a JSP work. And how does JSP function? उन्होंने फंक्शन कैसे होता है? It simply puts in Java inside the HTML pages.
आपको HTML पेज में ही JSP लिखना है, कोडिंग लिखना है। It can take any existing HTML page and change its extension to JSP। मतलब HTML का एक्सटेंशन चेंज होगा। और जैसे हम लोग नेटबीन्स में यहाँ पे हमारा जो भी फाइल है, वो जो भी फाइल हमारा रेडी होता है वो हमेशा डिजाइन फाइल, आप देख सकते हो डिजाइन फाइल क्या होता है, index.jsp होता है। लेकिन अगर हम लोग नेटबीन्स 1.8 या उसके आगे के वर्जन जाएंगे तो आपको सेपरेट HTML फाइल होगा। यहाँ पे भी हम लोग सेपरेट HTML फाइल ले सकते हैं, ओनली फॉर डिजाइन एंड विद डिजाइन विद JSP। ऐसे दो फाइल होते हैं, ठीक है, क्लियर। सो now we are extending the HTML to JSP and scripting elements are used to provide the dynamic pages. Each JSP page is turned into a Java servlet, compiled and loaded. यहाँ पे हर एक JSP पेज टर्न सर्वलेट में होता है और वो सर्वलेट कंपाइल और लोडेड कराया जाता है। मतलब हमेशा JSP में टर्न इनटू जावा सर्वलेट और जावा सर्वलेट के फाइल को कंपाइल किया जाता है, फिर लोड हो जाता है। दिस कंपाइलेशन हैपेंस ऑन द फर्स्ट रिक्वेस्ट। पहली बार वो कंपाइल होता है, सेकेंड टाइम उसको वो कंपाइल करने की या रीडिप्लॉयमेंट करने की जरूरत नहीं होती। After the first request, file does not take the long to load anymore. That's why they are given. Every time you change the JSP file, it will be recompiled again. अभी आपको every time recompile होगा, लेकिन यहाँ पे recompile की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सेव करोगे वैसे ही वो डायरेक्टली लोड करेगा। You can examine the source code produced by the JSP translation process. इसके लिए translation process होता है, that is called service part. So there is a directory called generated in Sun Java J2E, that is a Java to Enterprise Edition application server, where you can find the source code. वहाँ पे Glassfish server में हम लोग को ये सोर्स, इसीलिए दो मेथड हम लोग को होते हैं सर्विस में, एक do get और do post। यहाँ पे भी होते हैं। आपने अगर सर्वलेट फाइल आपने देखा होगा, आप सर्वलेट फाइल ओपन करते ही लेफ्ट साइड में आपको देखो दो फाइल होते हैं, do get, do post, और हम लोग प्रोसेस रिक्वेस्ट लेते हैं। Process request is the one part where we can send the data also and receive the data also. इसलिए वो हम लोग process request मेथड लेते हैं, लेकिन it is separated। अगर मुझे करना है only do get, तो do get का मेथड चालू करके हम लोग do get में कोडिंग लिखेंगे, do post का मेथड चालू करके do post में लिखेंगे। So this is a separated file, we can use it, separate methods we can use it for servicing to the servlet, okay। इस तरह हम लोग का फंक्शनिंग होता है। How does JSP execute? हम लोग को JSP execute होता कैसे? Let's start the server, put the JSP file in the folder। हम लोग को इंडेक्स पहले हम लोग को बताया भाई ये JSP फोल्डर में जाना है। फिर उसके बाद they are saying on the visit the browser by the URL। हम लोग डायरेक्ट URL में ऐसे JSP फाइल ओपन कर सकते हैं, http://localhost:8888 हम लोग का 80 जो भी पोर्ट नंबर होगा रन करते हुआ, ओके। फिर माय जो भी फोल्डर डायरेक्टली ये फाइल फोल्डर मतलब एप्लीकेशन नेम एंड स्लैश index.jsp ओपन होगा। So do I need the following directory structure to run a simple JSP? No, there is no need of directory structure. If you don't have the class file, TLD file, okay, जो भी है आपको क्लास फाइल लोग नहीं होती है या TLD फाइल नहीं होती है, तो आपको वो डायरेक्टरी क्या करते हैं स्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं है। You just put the JSP file in a folder directly and deploy that folder। आपको खाली वो फोल्डर के अंदर JSP फाइल लोड करना है और डायरेक्टली डिप्लॉय करना है। It will be running fine। Then if you are using bin class or servlet or TLD, the directory structure is required। लेकिन अगर आप bin क्लास लेते हो, bin मतलब bin फाइल यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैंने bin फाइल ले लिया तो आपको बीन के भी या जो भी हम लोग को मैसेज ड्राइवर बीन होते हैं हम लोग को अदर करेंगे तो हम लोग को बीन्स की फाइल अलग से हम लोग को वेब एप्लीकेशन मिलती है जावा बीन्स के अंदर। तो आपको जो पता होगा या JSF में जाके हम लोग को JSF पेज मिलते हैं, वैसे बीन के अंदर बीन के पेज मिलेंगे, स्टार्ट के अंदर स्टार्ट। जब हम लोग फ्रेमवर्क लेंगे तभी वो यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल आएंगे, तो उस फाइल के अंदर वो बीन क्लास या सर्वलेट या TLD फाइल दैट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर is required। हम लोग को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज नॉर्मली जस्ट लाइक दैट, ये हम लोग को पता है। ये देखो ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, वेब पेज, वेब INF, सोर्स पेज, तो वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। दिस इज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ JSP। जैसे वेब ऐप उसके अंदर वेब INF
में आपका web.xml फाइल, लाइब्रेरी फाइल, क्लास फाइल, जो सर्वलेट फाइल रेडी होगा वो क्लास फाइल, एंड जेएसपी, तो वेब ऐप में डायरेक्ट जेएसपी फाइल हम लोग ले सकते हैं। स्टैटिक HTML इमेजेस वगैरह इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं, ओके, सेपरेट फोल्डर बना के, और सोर्स पैकेज में आपकी सर्वलेट फाइल जाती है, ओके, क्लास फाइल, जावा फाइल। हम लोग अगर हम लोग का ये सर्वलेट फाइल नहीं होगा तो हम लोग नॉर्मल जावा फाइल लिखेंगे, राइट क्लिक न्यू, और जावा फाइल बनाएंगे, जावा क्लास फाइल, और उसमें हम लोग जेएसपी का कोडिंग लिख सकते हैं। दैट क्लास फाइल रिप्रेजेंट टू और इंटरप्रेट टू जेएसपी। क्लियर? यस स्टूडेंट? हेलो? ओके, यस सर। इस तरह हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होता है। जेएसपी एपी है, यहाँ पे हम लोग को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग हमारा पार्ट क्या है वो बताए। तो इंटरफेसिंग मतलब हेडर फाइल हम लोग ऊपर डिक्लेयर करते हैं, तो उसका इंटरफेसिंग पार्ट क्या है? आपको java.servlet.jsp ऊपर डिक्लेयर करते हैं तो जेएसपी चालू हो जाता है, और उस पैकेज के अंदर 2 इंटरफेसेस एंड क्लासेस दिए हुए। 2 इंटरफेसेस कौन से हैं? तो वो एक है जेएसपी पेज और दूसरा है एचटीटीपी जेएसपी पेज। ये 2 इंटरफेस है। व्हाट इज इंटरफेस? यू नो दैट इंटरफेस इंप्लीमेंट्स द मेथड। तो इंटरफेसिंग डिक्लेयर किया तो आपके मेथड्स इंप्लीमेंट्स होंगे। देन आफ्टर दैट क्लासेस, तो यहाँ पे क्लासेस दिए हुए, कौन कौन से क्लास, मतलब जेएसपी पेज या एचटीटीपी हम लोग ने ऐसे ऊपर हेडर फाइल डिक्लेयर किया कि ये सारे क्लास फाइल्स के ऑब्जेक्ट हम लोग पहले क्लास यूज करेंगे, क्लास डॉट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। जैसे जेएसपी राइटर, वहां पे प्रिंट राइटर आता था, अभी यहाँ पे जेएसपी राइटर, पेज कॉन्टेंट, जेएसपी फैक्ट्री, जेएसपी इंजन इन्फो, जेएसपी एक्सेप्शन, जेएसपी एरर, जेएसपी बेनिफिट, इस तरह फिर डॉट आउट जो भी प्रिंट एलएन या जो भी रहता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। So this, according to JSP specification, all the generated servlet classes must implement the JSP page interface and extend the servlet interface and provide a 2 life cycle method. Of course, they are init and destroy. Init is a use to initialize the value, so it is invoked only once during the life cycle. It is a requested firstly, and it is used to perform initialization part. So it is init method is always, it is the same like a servlet interface. उसके बाद JSP डिस्ट्रॉय का क्लोज, हम लोग जैसे क्लोज करते हैं, क्लोज फाइनली क्लोज में हम लोग डालते हैं क्लोज द आउट डॉट क्लोज, वैसे ही यहाँ पे वी हैव टू डू ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। इट इज आल्सो इन्वोक ओनली वंस दिस पेज इज डिस्ट्रॉयड व्हेन बिफोर, मतलब आपके जेएसपी जब आप लोग का ऑब्जेक्ट खत्म होने से पहले उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रॉय करना चाहिए। सो इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सम क्लीन अप ऑपरेशन, यानी कि हम लोग को एक क्लीनिंग प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यू चालू होगा तो लोडिंग के लिए प्रॉब्लम होगा, इसके लिए उसको क्लीन अप प्रोसेस करते हैं, डिस्ट्रॉय। जैसे हम लोग नेटबिन्स में देखो आउट डॉट क्लोज डालते हैं, प्रोसेस ये आउट डॉट क्लोज किया हुआ है, ऊपर उन्होंने आउट क्रिएट किया, ये प्रिंट राइटर से सर्वलेट में क्रिएट किया हुआ है, और नीचे हम लोगों ने उस आउट ऑब्जेक्ट को क्लोज किया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे इनिट और डिस्ट्रॉय। Now next interface है HTTP JSP पे। This interface provide a lifecycle method of JSP। कुछ lifecycle methods देते हैं। It extend to JSP ने just extend किया हुआ है। So HTTP JSP पेज में हम लोग को JSP services part आता है। That is underscore JSP service। So it is invoked each time when request of JSP page comes to the container। ये कब आता है? जब हर टाइम जितने रिक्वेस्ट आएंगे उतने टाइम आपका सर्विसेज चालू होगा। So it is used many times services we can use। हम लोग ने ओनली वंस किसको दिया हुआ है? इनिट और डिस्ट्रॉय को। इनिशियलाइज एक ही बार होगा, डिस्ट्रॉय एक ही बार होगा, बट सर्विसेज वी कैन यूज। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। अंडरस्कोर सिग्निफाइंग, अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस, इट सिग्निफाइज दैट यू कैन नॉट ओवरराइड दिस मेथड, मतलब इसको हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, to create the first JSP page, write some HTML code as given below। तो यहाँ पे इस तरह कोड हम लोग लिखेंगे। डेलीमीटर साइन में out.print 5 into 5, हम लोग को 5 into 5 25, तो हम लोग को डायरेक्टली आंसर मिलेगा ब्राउजर में 25। ये डेलीमीटर मतलब लेस देन और डेलीमीटर, ये JSP कोड है। तो डायरेक्ट JSP में हम लोग सर्वर साइड कोडिंग लिखना चालू कर रहे हैं, तो जो भी सर्वर साइड कोडिंग होगा वो हमेशा डेलीमीटर में होगा। डेलीमीटर मतलब लेस देन परसेंटेज और लास्ट में परसेंटेज ग्रेटर देन। व्हाट इज क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ सर। JSP कमेंट्स, इट कैन बी एडेड इन JSP एज शोन। कमेंट देना है तो इन डेलीमीटर डैश डैश जो भी कमेंट लिखना है, लास्ट में डैश डैश
and then comment 1. Even single line comment slash star 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 slash, देखो यहाँ दिया है स्लैश स्टार दिया है सिंगल या स्लैश स्लैश दिया है, तो मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकते हो, स्लैश स्टार कंटिन्यू यू कैन राइट राइट एंड देन लास्टली स्टार स्लैश. इन द डेलिमीटर ऑल JSP कोडिंग यू हैव टू राइट बिटवीन लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन. तो दिस इज सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट उन्होंने बताया हुआ है. ठीक है, कमेंट्स इट विल नॉट एग्जीक्यूट ऑन द आउटपुट, इट जस्ट हेल्प टू डेवलपर व्हाट कोडिंग वी आर रिप्रेजेंट ओवर देयर. सो इट इज अ कमेंट. उसके बाद आपका JSP डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जैसे हम लोग कमेंट डॉक्यूमेंटेशन में दे सकते हैं, तो ये कमेंट में बताया. डॉक्यूमेंट मतलब हम लोग ने कभी JSP बनाया, उस फाइल का नाम, क्रिएटेड कब किया, टाइमिंग, ऑथर कौन दे रहा है, ये होता है हमारा कॉपीराइट मार्क. तो कॉपीराइट मेटा इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं. कौन गा काय गा 1 मिनट काय झालं ना काय झालं? ओरडत गेली इकडं बा. ओरडलं काय झालं काय नाही. मला काय समजत नाही का तिची सवय आहे ती ओरडायची. जरा हेक्टिक शेड्यूल आहे, आज मी हलू नाही शकत. हेलो, okay fine. Now in the delimiter signs they are given the first upon @ of page content type is equal to text slash HTML with including UTF. After the HTML head we can see then metadata. It is just like normal JSP page. यहाँ पे उन्होंने बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, दिस इज नॉर्मल HTML. बट कुछ JSP एलिमेंट देना है तो हम लोग ऐसे JSP डायरेक्टिव देते थे. कोई एलिमेंट मतलब इस तरह उन्होंने जो दिया है @ पेज कंटेंट वो डेलीमीटर. आप यहाँ पे भी देख सकते हो JSP पेज में ऊपर भी, ये देखो ये जो पार्ट है वो है JSP का सर्वर साइड. तो @ पेज कंटेंट टाइप पेज इनकोडिंग दिस इज रेडी. जब भी आपको JSP का कोडिंग लिखना है आपको इसी तरह डेलीमीटर में लिखना होगा. इज इट क्लियर? ओके क्लियर. तो उसमें पार्ट क्या होता है, पार्ट ये है कि @ वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्टरी. जैसे मुझे कोई डायरेक्टरी डिक्लेयर करना है तो देखो अभी JSP डायरेक्टरी में एग्जांपल @ पेज इंपोर्ट, वी आर इंपोर्टिंग हियर डायरेक्ट इंपोर्ट इक्वल टू java.utility.star java.sql. इसका मतलब हम लोग जावा जैसे नॉर्मल जावा लिख रहे थे वैसा ही यहाँ पे हम लोग फाइल इंपोर्टिंग पार्ट कर रहे हैं, राइट. वैसे ही मल्टीपल इंपोर्ट, आप ऐसे मल्टीपल इंपोर्ट मतलब एक एक नीचे नीचे भी लिख सकते हो, एक साथ इंपोर्टिंग फाइल बताए. वैसे कोई फाइल को मुझे इंक्लूड करना है, कोई दूसरे HTML को इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग द ट्रांसलेशन, तो आप ऐसे @ इंक्लूड फाइल इक्वल टू header.html, तो वो फाइल यहाँ पे इंक्लूड होगी. फॉरवर्ड होगी. तो ये सारी आप देख सकते हो जो भी JSP डायरेक्टरी इस तरह देना होता है. परसेंटेज @ पेज, पेज मतलब हम लोग को वो इंपोर्ट पेज करना है JSP पे, इंक्लूड करना है तो वो फाइल को इंक्लूड करना है, फॉरवर्ड करना है. तो दिस आर द ऑल दैट थिंग आर द रिलेटेड. एक्सप्रेशन, कुछ आपको एक्सप्रेशंस देना होगा, जैसे कुछ वैल्यू डिक्लेयर करना है तो हम लोग डेलीमीटर इक्वल एंड देन एक्सप्रेशन आता है. जैसे इक्वल request.get parameter from the text box name, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्वल request.get parameter इन द ब्रैकेट. आपका टेक्स्ट बॉक्स के नाम में नेम रहेगा तो एंटर यूर नेम, वहाँ नेम जो लिखा हुआ वो नेम यहाँ पे आएगा. गेट पैरामीटर वैल्यू, गेट योर एज, गेट योर नेम, तो हम लोग इस तरह उससे टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम इसके को हम लोग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, देखो अभी ये हुआ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, इसको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट. It requests the parameter and request is an implicit object available in JS. Got it? Yes, student? Yes? Hello? Yes, Yes, sir. Yeah. Next, पाई वैल्यू. देखो अभी पाई वैल्यू इनबिल्ट है, हम लोग के पास नहीं है, तो उन्होंने कॉल कैसे किया है, देखो इक्वल math.py, मतलब मैथ इज ऑलरेडी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट, उसका पाई वैल्यू ले रहे हैं तो वहाँ पाई वैल्यू डायरेक्टली जस्ट लाइक. और एक एग्जांपल दिया है इक्वल math.square-root of 2, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो ये दिया. वैसे ही एक दिया है इज इक्वल न्यू, एक टुडेज डेट देने के लिए न्यू java.utility.date, तो इस तरह हम लोग नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी
हम लोग डेट शो कर रहे हैं। क्लियर? ये स्टूडेंट, दिस इज Okay, sir. एक्सप्रेशन। तो हम लोग ये इसको हम लोग एक्सप्रेशन लैंग्वेज बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग। JSP इज अ एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जो भी एक्सप्रेस करते हैं वो इधर ले। नेक्स्ट, जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको एडिशन करना है तो इज इक्वल a प्लस बी, तो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइक। उसके बाद स्क्रिप्टलेट। स्क्रिप्टलेट क्या होता है? फॉर अ स्क्रिप्टलेट दिस इज, जैसे जो डेलिमिटर में स्टेटमेंट लिखते हैं वो स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, जस्ट नॉर्मल स्टेटमेंट आर प्लेस इन द ट्रांसलेटेड सर्वलेट JSP सर्विस में। तो हम लोग वो सर्विस सेंटर में डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे सर्विस स्क्रिप्टलेट ना, स्क्रिप्टलेट मतलब विदाउट सिंग, तो JSP सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट जैसे हम लोग नॉर्मल में प्रोग्राम में सर्वलेट के प्रोग्राम में यहाँ पे करते हैं वैसा ही सेम। जैसे यहाँ पे दिया है हमारा प्रोसेस रिक्वेस्ट, या जैसे डू गेट में देखो, यहाँ पे देखो डू गेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, फिर थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन। उसी तरह वहाँ पे हम लोग सर्विस अंडरस्कोर JSP सर्विस HTTP सर्वलेट और वो देते। तो यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो देंगे वो स्टेटमेंट सर्विस का स्टेटमेंट होगा। तो इज स्क्रिप्टलेट। देखो अभी स्क्रिप्टलेट क्या होता है, तो जैसे चेकर रिक्वेस्ट पैरामीटर, पहले स्ट्रिंग नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स का नाम में नेम रहेगा वो यहाँ पे नेम में स्टोर होगा। और यहाँ दे रही इफ नेम इज इक्वल टू नल इन द कर्ली ब्रैकेट। देखो ये पूरा कोडिंग इफ बीफ का कोडिंग डिलीमीटर में आया, दैट इज योर JSP। बट जब बॉडी टैग देते हैं, सॉरी HTML टैग्स यूज करते हैं, हेडिंग 3 वगैरह, वो तो डायरेक्ट यूज किया, उसके लिए डिलीमीटर यूज किया नहीं है। तो स्क्रिप्टलेट है, दिखाई दे रहा है हेडिंग 3 यहाँ पे स्क्रिप्टलेट है। कैसे स्क्रिप्टलेट है? तो क्योंकि वो डेलीमीटर साइन में नहीं आता है, उसको हम लोग स्क्रिप्टलेट, तो दे आर गिवन ओवर देयर स्क्रिप्टलेट एक्सप्रेशंस और वो एग्जांपल दिया हुआ। गॉट इट? यस स्टूडेंट। और Yes, उसी sir. को लेके नाम अगर नल है तो हम लोग प्लीज सप्लाई नेम दिया है, अदरवाइज उन्होंने नेम दिखाया हुआ है हेलो करके, और एक्सप्रेशन डेलीमीटर में इक्वल नेम करके एक्सप्रेस करके उन्होंने जो नाम आप एंटर करोगे टेक्स्ट बॉक्स में वो नाम इधर रिप्रेजेंट। क्लियर? यस स्टूडेंट। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। ओके, सो आगे आपका JSP GUI एग्जांपल है। एक मिनट मुझे जरा फाइन। सो नाउ उसके बाद JSP GUI एग्जांपल ग्राफिक यूजर इंटरफेस एग्जांपल उन्होंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कैसे यूज करना है। तो जहाँ पे रियली उन्होंने HTML हेड टाइटल और JSP के साथ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किया है, और ये हम लोग ने पार्ट में हम लोग सर्वर का, ये ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है, सर्वर का सेशन, सर्वर का सर्वर नेम, ये इस तरह रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट, ये हम लोग ने किया है। फिर भी हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और पता कर लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल हैंडबुक में ये दिया हुआ। Yeah, this is the yeah. So develop a simple JSP element to display the value obtained from the use instantiating object of various types. ये हम लोग अभी करने वाले हैं, देखने वाले। तो सिंपली go on file, new project, Java web, next GlassFish server, next, कुछ भी नहीं लेना है, finish। जो एप्लीकेशन आया JSP फाइल है, आप देख सकते हो, उसी JSP फाइल में हम लोग डायरेक्टली आफ्टर बॉडी हम लोग ये इंस्टेंशिंग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, और HTML के अंदर ही पेज में ही, नो सर्वलेट वेवलेट कुछ भी नहीं, डायरेक्टली HTML पेज के अंदर बॉडी के अंदर कोडिंग लिख रहे हैं। तो वहाँ पे कोडिंग में हम लोग ने हेडिंग दिया, इट इज अ स्क्रिप्टलेट, हेडिंग दिया,
फिर क्वेरी स्ट्रिंग हम लोगों ने लिखा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग कॉल किया, कॉन्टेक्स्ट पाथ तो रिक्वेस्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट पाथ कॉल किया, रिमोट हॉस्ट तो हम लोगों ने लिया रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो ये तीन मेथड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के मेथड है, रिक्वेस्ट इज अ इनबिल्ड ऑब्जेक्ट, ओके, उसके मेथड उन्होंने दिए हुए and that method represent the value of that query string, context path and remote hop। इससे क्या आता है वो हम लोग को पता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में उन्होंने कैरेक्टर एनकोडिंग टाइप रिस्पॉन्स डॉट गेट कैरेक्टर एनकोडिंग, रिस्पॉन्स डॉट गेट कंटेंट टाइप, रिस्पॉन्स डॉट गेट लोकल, ऐसे तीन है। सेशन ऑब्जेक्ट में उन्होंने सेशन लाइक इज इक्वल सेशन गेट आईडी, और सेशन कब क्रिएट हुआ उसके लिए उन्होंने जावा यूटिलिटी डेट लिया है से, और उसके अंदर लिया हुआ है सेशन गेट डॉट गेट क्रिएशन टाइम और सेशन डॉट गेट लास्ट एक्सेस टाइम। तो लास्ट एक्सेस टाइम कब है, ठीक है। तो हम लोग ये रन करते हैं। रन होने में टाइम ले रहा है, ओके, तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे जब हम लोग रिक्वेस्ट करें तो हम लोग को क्या दिखाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग जो भी रहेगा उसको नल, ये कॉन्टैक्ट लोकेशन ऑफ द फाइल, रिमोट हॉस्ट किस सर्वर के ऊपर वर्कआउट कर रहा है, कैरेक्टर एनकोडिंग यूनिकोड सिस्टम, फिर उसके अंदर यूनिकोड में कौन से टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल का आउटपुट हम लोग को दिखाई देगा, लोकली कौन से लैंग्वेज में आ रहा है वो, फिर आईडी सेशन आईडी नया जनरेट और क्रिएशन सेशन टाइम डेट एंड टाइम और लास्ट एक्सेस सेशन टाइम, ये आपको आउटपुट आने वाला आएगा। तभी क्या आउटपुट आया क्या, हाँ यहाँ पे आ, सी दैट नाउ, गॉट इट, यस स्टूडेंट, Yes, sir. okay, so that is your JSP का इंस्टेंसिंग ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पांस ऑब्जेक्ट एंड सेशन ऑब्जेक्ट, ये इनबिल्ड होते हैं। इनबिल्ड मेथड से ही हम लोग ने लिए, हम लोग ने कुछ भी नहीं, रिक्वेस्ट डॉट उसका जो इनबिल्ड मेथड है गेट क्वेरी स्ट्रिंग, गेट कॉन्टेक्ट, गेट रिमोट हॉस्ट, जैसे रिस्पांस का गेट, ये सारे इनबिल्ड है, हम लोग ने नहीं बनाए, वो इनबिल्ड, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आपका एक्शन एलिमेंट होता है। अभी एक्शन एलिमेंट, देयर आर मेनी एक्शन टैग्स आर देयर, हम लोग खुद के एक्शन टैग्स हम लोग बना सकते हैं। तो एक्शन टैग इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, हम लोग कुछ खुद का एक कुछ टास्क रेडी करना चाहते हैं। तो इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो बिटवीन पेजेस एंड यूज जावा बीन्स। अभी आ गया आपका बिन पार्ट आ जाता है, तो बिन पार्ट में वो जावा बीन्स के अंदर हम लोग को ये एक्शन टैग कॉल करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम लोग को बिन में बहुत सारा काम रिलेटेड जेएसपी आने वाला है, तो उसके अंदर इस तरह इंक्लूड एक्शन टैग होता है। देखो जेएसपी कोलन इंक्लूड, इट इज यूज्ड टू इंक्लूड अनदर रिसोर्स, ओके, जेएसपी टू इंक्लूड और इट इज यूज्ड टू अनदर okay, fine. So we'll continue. Now JSP include action tag is used to include another resource including files at translation time. When JSP is translated to a servlet, मतलब आप लोग को इंक्लूडिंग फाइल क्या होता है, जो फाइल्स को मुझे कॉल करना है उस फाइल का नाम हम लोग को इंक्लूड करना है, हेड ऐसे लिखना पड़ेगा, इन द डेलीमीटर दैट इज लेस देन परसेंटेज। हम लोग स्क्रिप्टिंग टैग स्क्रिप्टिंग बोलेंगे, स्क्रिप्टिंग क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्टलेट। तो उसके अंदर सॉरी स्क्रिप्टलेट बोल रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। तो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट में लेस देन परसेंट एट द रेट ऑफ
इंक्लूड क्या कर रहा है, एक्शन एलिमेंट है, एक्शन में इंक्लूड में फाइल, तो फाइल इज इक्वल टू, मतलब जो भी फाइल आपको लेना है वो फाइल इज इक्वल टू फाइल नेम। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे लिखा है JSP कोलन इंक्लूड पेज इक्वल टू फाइल नेम एंड फ्लश इक्वल टू ट्रू, फिर उस फाइल का पेज कौन सा है वो हम लोग फ्लश कर रहे हैं और ट्रू का। ओके, वैसे ही दूसरा मेथड होता है फॉरवर्ड मतलब भेजना है, इंक्लूड मतलब उसके अंदर रिसीव करना है। तो यहाँ पे JSP फॉरवर्ड भी आता है, तो जैसे JSP कोलन फॉरवर्ड पेज और उस फाइल का नाम, मतलब एक JSP फाइल से दूसरे JSP फाइल में जंप करना है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, लिखना होता है खाली लेस देन JSP। ऑलरेडी आपने डेलीमीटर साइन इस तरह इंक्लूड किया होगा ऊपर, तो आपको डायरेक्टली लिखना होता है JSP कोलन फॉरवर्ड पेज इक्वल टू और उस फाइल का नाम। क्लियर? देखो यहाँ पे दो फाइल है, index.jsp ये फाइल है, और उस index.jsp में फॉरवर्ड हम लोग कर रहे हैं print.date.jsp, मतलब हम लोग ने print.date.jsp ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इस फाइल के थ्रू हम लोग वो फाइल फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड करके हम लोग को क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके अंदर out.print today's date प्लस जावा यूटिलिटी कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस गेट टाइम। हम लोग ने जो भी आज का डेट टाइम उसके अंदर जो प्रिंट किया है वो प्रिंट हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं इंडेक्स पेज के अंदर। तो इंडेक्स पेज चालू होते ही ये फाइल printed.jsp फाइल में आउटपुट आपको दिखाई देना। क्लियर? यस? Yes, sir. So there are two action elements. One is a include and another is a forward. Good morning. Next, passing parameter for other actions. Passing parameter. If you want to pass the parameter, so it said the parameter into forward and include mostly. तो आपको forward कर सकते हैं, तो forward करना मतलब है, लेकिन with expressions पैरामीटर तो हम लोग एक जस्ट और पाइप साइन देते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन में अपने स्क्रिप्टिंग कोड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे याद दिया JSP पैराम नेम, पैरामीटर नेम, वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू, पाइप साइन और उसका एक्सप्रेशन, यहाँ उन्होंने ये बताया। उसी तरह इंक्लूड सेम जैसे फॉरवर्ड होता है वैसे इंक्लूड का भी उसी तरह है, रिलेटिव URL, पाइप साइन और एक्सप्रेशन, ये हमारा इंक्लूड पेज हुआ। फिर पैरामीटर, तो in between JSP include and JSP include closing tag we are using, वैसे फॉरवर्ड के अंदर इस तरह हम लोग वो कोडिंग एक्शन विद एलिमेंट विद द पासिंग पैरामीटर यूज कर सकते हैं। यस स्टूडेंट? हेलो हेलो हेलो? Yes, sir. या ओके। Now loading Java beans. हम लोग का अभी Java bean का फाइल लोड करना है। The special classes that encapsulate some data, they have a default constructor, मतलब बहुत सारे default constructor होते हैं। constructor क्या होता है? क्लास फाइल का same name of the method, right? तो हम लोग को constructor default होते हैं वो get and set method में हम लोग, जैसे हम लोग ने डिक्लेयर किया वेरिएबल नेम, तो get name and set name। अगर वेरिएबल डिक्लेयर है एज तो हम लोग गेट एज सेट एज, और वेरिएबल डिक्लेयर किया बर्थडे तो गेट बर्थडे सेट बर्थडे। व्हाट इज गेट? गेट फॉर रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द वेरिएबल बर्थडे, और सेट मतलब वी सेट द वैल्यू टू द बर्थडे। इस तरह हम लोग गेट सेट मेथड यूज करते रहे लोडिंग जावा। फिर स्पेशल क्लासेस दैट एनकैप्सुलेट बाइंडिंग डेटा का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बीन के अंदर हम लोग इस तरह JSP यूज बीन आईडी और क्लास डिक्लेयर करते हैं। फिर इफ द बीन ऑलरेडी एग्जिस्ट दिस स्टेटमेंट डज नथिंग, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम लोग को ये स्टेटमेंट कुछ काम नहीं करेगा। डायरेक्टली यू हैव टू सेटिंग द प्रॉपर्टी JSP डॉट सेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू व्हाट, प्रॉपर्टी इक्वल टू व्हाट और वैल्यू इक्वल टू व्हाट, जैसे यहाँ दिया आपके एग्जांपल में आपको दिया हुआ, एंड दैट गेट प्रॉपर्टी और सेट प्रॉपर्टी के यूज में हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो अभी मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको दिखाया। पैकेज बिन्स, तो एक तो फोल्डर का नाम है, पब्लिक क्लास ग्रीटिंग या क्लास फाइल डिक्लेयर किया है ग्रीटिंग। फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, देखो प्राइवेट स्ट्रिंग ग्रीटिंग। व्हाट इज दैट? क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो क्या कर रहे हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी वी आर सेटिंग ओवर देयर। यहाँ पे प्राइवेट ग्रीटिंग करके आपका क्या है, एक वेरिएबल्स हम लोग जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसा स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन प्राइवेट। ओके, फिर उन्होंने पब्लिक स्ट्रिंग में पब्लिक ग्रीटिंग, अभी आप देख सकते हो ग्रीटिंग इज द क्लास नेम
और मेथड का नाम भी ग्रीटिंग है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर इन्वोक ऑटोमेटिकली। तो ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये वर्ड हम लोगों ने वेरिएबल में स्टोर किया है। हेलो वर्ल्ड इज अ स्टोर इन द वेरिएबल, ग्रीटिंग करके स्मॉल ग्रीटिंग, ये यहाँ जी कैपिटल, तो ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। ये कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक ग्रीटिंग इज अ कंस्ट्रक्टर, ओके। और ये जो स्ट्रिंग ग्रीटिंग लिखा है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, वो असाइन करा है, लेकिन कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली इन्वोक, इसीलिए उन्होंने नीचे देख सकते हैं आप, पब्लिक स्ट्रिंग गेट्स ग्रीटिंग और पब्लिक वॉइड सेट ग्रीटिंग अपने आप रिटर्निंग कर सकते हो गेट सेट मेथड। ये राइट क्लिक करने के बाद वो वायर और राइट क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली गेट सेट मेथड रेडी हो जाता है। और गेट सेट मेथड में क्या होता है, गेट मतलब रिसीविंग द वैल्यू, रिटर्न ग्रीटिंग, और सेट मतलब सेट द वैल्यू। कहाँ पे सेट कर रहे हैं हम लोग, हमारे यूजर फ्रेंडली सेट कर रहे हैं। ग्रीटिंग इज इक्वल टू इफ जी इज इक्वल टू नल, अगर आपका जी मतलब यहाँ पे देखो पैरामीटर दिया है स्ट्रिंग जी, तो वो जी अगर नल है तो उसके अंदर वो हेलो वर्ल्ड सेट होगा, और वो अगर नल नहीं है तो वो जी दिखाएगा, ओके। वैल्यू अगर एंटर है तो वैल्यू दिखाएगा, नहीं है तो हेलो वर्ल्ड उसके अंदर सेट हो जाएगा। दिस वे वी हैव टू यूज द बीन्स फॉर गेट सेट। ये ऐसा बहुत सारा चीज आने वाला है, लेकिन आपको डोंट वरी, इन नेटबीन्स देयर इज अ फैसिलिटी, जब वेरिएबल इस तरह और कंस्ट्रक्टर रेडी होगा तो राइट क्लिक करके डायरेक्टली ये गेट सेट मेथड रेडी हो जाते हैं, हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओनली डिस्क्रिप्शन पार्ट्स वी हैव टू राइट, जैसे ये कोड्स के अंदर भी आया है क्या है। So Java beans naming convention, if the property name is greeting, तो get method must have the name get greeting and set name। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको अगर वेरिएबल का नाम ग्रीटिंग दिया है तो आपको गेट ग्रीटिंग एंड सेट ग्रीटिंग अपने आप आए, राइट। उसके अंदर जी कैपिटल होगा, वो भी देखिए, गेट ग्रीटिंग सेट ग्रीटिंग जी कैपिटल, राइट। जैसे मैंने बोला वेरिएबल का नाम मैंने दिया नेम, तो क्या आएगा, गेट नेम सेट नेम, लेकिन एन कैपिटल होगा। अगर एज दिया तो गेट एज सेट एज, लेकिन ए कैपिटल होगा। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। हाउ टू क्रिएट अ बीन, अभी बीन क्रिएट कैसे होता है, तो उन्होंने नीचे बताया है कि आपको इस तरह कॉल करना, JSP: यूज बीन ID हेलो, और क्लास फाइल को कॉल करना पड़ेगा जो beans.greeting हम लोगों ने बनाया है। दिस इज द ग्रीटिंग फाइल हम लोगों ने बनाया है, ये beans.greeting फाइल हम लोगों ने बनाया है, तो वो फाइल हम लोग यहाँ क्लास फाइल की तरह कॉल करेंगे एंड देन उसको सेट करेंगे। सेट प्रॉपर्टी हेलो प्रॉपर्टी ग्रीटिंग वैल्यू हेलो JSP वर्ड, तो वो फॉरवर्ड इज सेट भी हो सकता है। तो दिस इज सेट प्रॉपर्टी, अगर वैल्यू नहीं रहेगा तो सेट होगा, वैल्यू रहेगा तो ऑलरेडी वो गेट प्रॉपर्टी की वैल्यू से आप लोग, तो इस तरह क्रिएटिंग बीन उन्होंने बताया। तो अभी इस क्रिएटिंग बीन्स फाइल का एग्जांपल इधर दिया हुआ है। सो हाउ वी आर टू यूज एंड क्रिएट, वो बताया हुआ है, इजीली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्लास फाइल बना के। तो यहाँ दिया है देखो कि आपने ऑलरेडी beans.greeting फाइल बनाया हुआ, या उसको कॉल करके JSP: यूज बीन ID हेलो क्लास beans.greeting, फिर JSP: set property name इक्वल टू हेलो, इस तरह दिया। सो प्रॉपर्टी इक्वल टू ग्रीटिंग, वैल्यू इक्वल टू हेलो जैसे। तो हम लोगों ने दो चीजें यूज की है बीन के अंदर। यूज बीन हमने ID क्लास फाइल को कॉल किया, उसके अंदर प्रॉपर्टी सेट किया वैल्यू हेलो JSP वर्ड, वो वैल्यू उसके अंदर आएगा हेलो JSP वर्ड। अभी उसको हम लोग को कॉल करना है, गेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी हो गया, अभी गेट करना है। गेट प्रॉपर्टी आप देख सकते हो बॉडी के अंदर यहाँ पे लेस देन JSP डॉट गेट प्रॉपर्टी नेम हेलो, नेम ऑलरेडी है हेलो, वही नाम लिया है, और प्रॉपर्टी इज ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग के अंदर जो भी रहेगा वो यहाँ पे रिटर्निंग वैल्यू करेगा। बट इट यस स्टूडेंट, यस हेलो, हाँ सर, हाँ तो सर। जो वैल्यू हम लोग सेट करेंगे वही वैल्यू ग्रीटिंग के अंदर रिटर्न करेगा। तो दिस वैल्यू सेट एंड गेट, लेकिन उसके लिए मेथड लिखने की जरूरत नहीं, कैसे डिस्प्ले करना है बोल्ड इटालिक वो भी जरूरत नहीं, अगर आपने वहां पे सेट किया है। नेक्स्ट is using JSP, Java beans in JSP file. So two beans, one initialized explicitly and other initialized using request parameter. एक आप लोग को दिखाया हुआ है explicitly, अभी हम लोग एक क्या कर रहे हैं request parameter में कर। request parameter में मतलब user should enter the value and it shall be
डिस्प्ले ऑन दैट रिटेनिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जेएसपी देखो, आप देख रहे हैं ग्रीट 1 एंड ग्रीट 2, दो ग्रीटिंग्स फाइल है अलग अलग, आईडी 2 है, उसकी प्रॉपर्टी भी 2 है, एक में हेलो जेएसपी वर्ल्ड और एक में हम लोग ने लिखा है ग्रीटिंग, पैराम ग्रीटिंग लिखा हुआ है, देखो वैल्यू सेट नहीं किया, वैल्यू ब्लैंक। फिर एचटीएमएल हेड टाइटल यहाँ दिया है, पहले ग्रीटिंग में ग्रीटिंग जेएसपी यूजिंग टू ग्रीटिंग बिन्स यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट बिन यहाँ लिया है जेएसपी डॉट गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ग्रीट 1 प्रॉपर्टी ग्रीटिंग, ऑटोमेटिकली पहले ग्रीटिंग का वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। अभी सेकेंड बिन ग्रीटिंग 2 कॉल किया है, जहाँ ब्लैंक है तो वहाँ ब्लैंक फाइल है। तो यहाँ पे हम लोग ने दो बिन्स फाइल को एक साथ एग्जीक्यूट किया है, तो उसने वही बताया, वन इनिशियलाइज एक्सप्लिसिटली एंड अदर इनिशियलाइज विद द रिक्वेस्ट पैरामीटर, यानी कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू पैरामीटर ग्रीटिंग के अंदर वैल्यू एंटर करने वाले हैं। व्हेन यू एंटर द वैल्यू देन इट विल सेट, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो डिस्प्ले होने वाला है, यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे वैल्यू, वो वहां पे सेट होके दिखेगा। So this is the two ways we can use the bins initialization explicitly or initialization using a request parameter. Next, using Java bins in JSP file, 3 bins. अभी यहाँ पे 3 bins है, one initialize explicitly, one initialize request parameter and one is a initialize using get parameter. अभी हम लोग get parameter से लें, यानी कि text box के थ्रू, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर है, तो 1 ग्रीटिंग 1 ग्रीटिंग 2 ग्रीटिंग 3, तो 1 हम लोग को मालूम है कि यहाँ ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू आपको गेट प्रॉपर्टी में दिखने वाला। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग को पैरामीटर खुद एंटर करना है ग्रीटिंग के अंदर, वो वैल्यू रिटर्न करें। तीसरा उन्होंने देखो, तीसरा प्रॉपर्टी में उन्होंने दिया है कि वैल्यू इज इक्वल टू डिलीमीटर के अंदर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किया। तो इन JSP ऑलरेडी सेट प्रॉपर्टी नेम ग्रीटिंग 3 प्रॉपर्टी इक्वल टू ग्रीटिंग, वैल्यू इक्वल टू क्या किया है कोट्स के अंदर कि डिलीमीटर में यानी कि लेस देन परसेंटेज में इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इन द स्लैश ग्रीटिंग। तो हम लोग को जो भी ग्रीटिंग के अंदर पैरामीटर वैल्यू आएगा, मतलब हम लोग ने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम इधर वैल्यू रिक्वेस्ट करके स्टोर करेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ 3 bin JSP फाइल। तो आपको ये बिन्स के अंदर किस तरह यूज करना है ये पार्ट बताया गया। Is it clear? Hello. Yes, sir. हाँ सर। Next, implicit out object occurs in a scriptlet. आपको scriptlet दिखा रहा है, scriptlet के अंदर less than percentage और scriptlet tag. Scriptlet tag में you can use the out object to write the output. तो हम लोग out dot कोई भी out करना print करना है तो out dot print क्या लिखना होता है, out dot print स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर आउट डॉट प्रिंट, और जो डायरेक्टली एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे इधर सम इज आउट डॉट प्रिंट सेमीकोलन दे रहे हैं, और अगर दो आपको स्टेटमेंट लिखने हैं तो एक सेमीकोलन आएगा, आउट डॉट प्रिंट सम इज सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन में आउट डॉट प्रिंट एक्सप्रेशन के साथ में डायरेक्ट देखो 1 + 2 इक्वल टू प्लस इन द ब्रैकेट 1 + 2, इधर डायरेक्टली हम लोगों ने एक्सप्रेस किया, हम लोगों ने किसी भी वेरिएबल को स्टोर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसी को हम लोग डायरेक्टली यूज करें। इस तरह हम लोग स्क्रिप्टलेट में यूज कर सकते हैं। तो पहला आउट डॉट प्रिंट मेथड उन्होंने बताया हुआ, फिर वैसे ही क्लियर का भी बताया हुआ, आगे देखें हम लोग। तो दिस आर ऑल दैट थिंग्स आर देयर। न्यू लाइन मतलब स्लैश एन, ओके, आउट डॉट प्रिंट एलन मतलब न्यू लाइन, तो हम लोग स्लैश एन देके भी न्यू लाइन कर सकते हो, ये बताया। ओके, सो देयर आर मेथड्स प्रिंट, क्लियर, न्यू लाइन, ऐसे 3 मेथड्स उन्होंने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट में बताए हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, इम्प्लिसिट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, और इम्प्लिसिट सेशन ऑब्जेक्ट भी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, और एक दिया है इम्प्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। लेकिन थ्योरी पार्ट में आप क्या लिखोगे, तो थ्योरी पार्ट में ये लिखना पड़ेगा। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट में मेथड्स है, 2 मेथड है, एक गेट पैरामीटर और गेट कुकीज। What is get parameter? Take the value from the user requested by the text box and then store over there. So returns the value of the request parameter as a string or null. If the parameter does not exist, request parameter are extra information sent with the request. For HTTP servlet, or parameter are contained in the query string or posted from data.
cookies तो आपको पता है small information they will store, so it returns array containing, लेकिन add cookies करेंगे तो array में और एक first word, second word, third word इस तरह index में store होते रहेगा. So it returns an array containing all of the cookies object the client sent with the request, and this method returns the null if no cookies were sent. अगर आपके cookies में कोई value store नहीं होना तो null sent होगा. तो दोनों दिए हैं get parameter request object के अंदर. Returns, it returns an array of the all cookies and including with this request or null if the request has no cookie. तीसरा मेथड दिया है get content length. अगर मुझे किसी का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब आपने कंटेंट कितने स्टोर किए, लोड किए, पैरामीटर कितने, तो उसका लेंथ भी फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने गेट कंटेंट लेंथ मेथड दिया है, सी कैपिटल एन कैपिटल. सो वहां पे हम लोग इट रिटर्न द लेंथ इन द बाइट्स ऑफ द रिटर्न बॉडी एंड मेड अवेलेबल इन द इनपुट स्ट्रीम. 1 if the length is not known, if greater than integer, तो max value for HTTP servlet same as the value CGI variable. हम लोग लिखते हैं ना content underscore length, वो वही है. ओके, ये वेरिएबल यूज करते हैं CGI में, content underscore length. So it returns an integer containing the length of the request body. जैसे यहाँ आपने देखा कि किस तरह उन्होंने request parameter यूज किया, is equal request dot get parameter ग्रीटिंग. तो ग्रीटिंग करके सपोज एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम रहेगा, उसके अंदर का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले. नेक्स्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. ओके, 1 मिनट, आई हैव टू चेक इट इज ओपन नाउ. One, 2, 3, 4. Okay, 5. Open. Chain 32. Okay. What is there? Okay. Okay. So let's continue now. Implicit response object. Response. Following are the some method associated with the response object. Public void add cookie. So we can see that now. Add cookie adds the specified cookie to the response, and this method can be called multiple times or set more than one cookie. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आप एक add cookies में बहुत सारे cookies आप add कर सकते हो 1 by 1 arrays में. Add the specified cookie, आप जो add करने वाले हो उस cookies का नाम specify होता है और वो add cookies के अंदर वो नाम देना है. So this is a cookie, the cookie to return the client. तो भी हम लोग को रिटर्न करना है वैल्यू. स्मॉल इन वैसे गेट कंटेंट टाइप, इट रिटर्न द कंटेंट टाइप ऑफ द माइम बॉडी. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट, ऑथर, ये करना होगा तो गेट कंटेंट टाइप. नेक्स्ट, पब्लिशिंग गेट हेडर. गेट द वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स हेडर विद द गिवन. कोई हेडिंग ऊपर देना होगा तो गेट हेडर. पैरामीटर नेम्स द नेम रिस्पॉन्स द हेडर whose value of the return and value returns value of the response header with the given name or null if no header is there. Next, session object. It is a certain object. Session कब create किया, session मतलब आपने वेबसाइट कब ट्रैकिंग के लिए कब फाइल ओपन हुआ, लास्ट एक्सेस कभी किया आपने वेबसाइट, विजिटिंग कब किया, ये सारी चीजें हम लोग को जाननी होगी. तो इट इज अ सर्वलेट कंटेंट ऑब्जेक्ट associated with the application. It created during the initialized phase of JSP where it will removed by JSP destroy. ये JSP destroy से remove. फिर implicit configuration, कुछ configuration करना है तो separate मेथड दिया servlet configuration object associated with it, and also get the information about the server class file generated by JSP. तो हम लोग उस servlet फाइल का नाम जान सकते हैं, configuration dot get servlet name and it return the servlet name. So these are all the implicit object instancing object they are given. Again, character coding conventions दिया हुआ है. So in JSP, certain character sequences are used to represent start and stop tag. The developer sometimes need to escape a character, so the JSP engine does not interpret it as a part of a special character sequence. Okay. क्या बताया इधर उन्होंने कि आपके JSP के कुछ character sequence होते हैं, वो आपको start and stop tag represent करते हैं. कभी start करना है, कभी stop करना है. तो simple कैरेक्टर यहाँ पे डिलीमीटर साइन स्टार्ट हो गया मतलब स्क्रिप्टिंग JSP स्टार्ट हो गया.
डिलीमीटर क्लोज हो गया मतलब आप हो रहा है। लेकिन अगर स्लैश दिया, स्लैश मतलब टैग खत्म हो रहा है, टैग नहीं हो रहा है, नहीं। सो इन स्क्रिप्टिंग एलिमेंट इज द कैरेक्टर परसेंटेज ग्रेटर देन नीड्स टू बी यूज। आपको क्लोज करना है, एंडिंग करना है, तो हम लोग को इसी तरह चाहिए। एस्केप द ग्रेटर देन साइन विद अ बैक स्लैश। अगर आपने बैक स्लैश दिया तो बैक स्लैश बिफोर एक्सप्रेशन एक्ट एज अ एस्केप कैरेक्टर, वो एस्केप कैरेक्टर यूज करें। जब भी बैक स्लैश यूज करेंगे आप एस्केप कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस, जैसे स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश वी वगैरह, स्लैश ए, तो दिस आर ऑल द एस्केप सीक्वेंस ऑफ द C++। वैसे ही यहाँ पे जो भी बैक स्लैश के ऊपर स्पेस होगा वो इग्नोर, एस्केप सीक्वेंस की तरह यूज करें। So this information the JSP engine to deliver the expression verbatim instead of the evaluating, verbatim की तरह यूज करें। So यहाँ पे उन्होंने वो दिया है, जैसे देखो स्लैश स्टार, इट यूज अ टेम्पलेट टेक्स्ट स्टैटिक HTML वेयर यू रियली वांट। एक्चुअल में हम लोग को ये चाहिए लेकिन ये इस तरह दिया है। और ये स्लैश है, डिड यूज द स्क्रिप्टलेट वेयर यू रियली वांट, ये हम लोग को चाहिए लेकिन ये यूज, ये सारी चीजें दी हुई है। तो वहाँ पे अभी सिंगल कोड इज एन एट्रीब्यूट दैट यूजेस द सिंगल कोड। रिमेंबर हाउएवर वी वांट, मतलब सिंगल कोड डिस्प्ले करना है तो स्लैश बैकस्लैश एंड कोड, डबल कोड डिस्प्ले करना है तो बैकस्लैश कोड, जैसे C++ में था वैसे ही। अगर ये डिस्प्ले करना है तो हम लोग उस तरह दे सकते हैं, तो इट इज एन एट्रीब्यूट, हम लोग को ये दिखा रहे हैं। ये भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, कोलन डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीमीटर वो दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल कोड्स कैरेक्टर कोडिंग कन्वेंशन। अभी EI दैट इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज। अभी हम लोग को टाइम नहीं है मुझे, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि मुझे वर्कलोड है, इसका पेपर लोडिंग करना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, EL और JSTL पार्ट जो भी है। तो 20 पेज के ऊपर जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम, मुझे थोड़ा रिमाइंड करो नेक्स्ट टाइम, तो इट विल। और ये कंप्लीट कर सकते थे, अभी भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि ये थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग को करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन और टैग, इंडिविजुअल खुद के टैग बनाना वगैरह। तो ये पार्ट रह गया है हमारा, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर। चलो नाउ एंटरप्राइज जावा के लिए हमारा आज का डेट है 27 सर। ओके फाइन। सो अटेंडेंस दोगे अभी फटाफट, एक मिनट। या गिव मी अटेंडेंस फास्ट। रोल नंबर 1 to 10। 6 6 7 8 हाँ 6 सर। 7 8 आगे 11 to 20, 11 to 16 15 15 16 ओके 21 to 30 22, 26 21 22 26 21, 21 23 28, 28, 28 29 28 23 हाँ 21 22 23 26 28 सर हाँ, सर। 29 24 29 और 20 भी है पुजारी 20 ओके 29 then after that 31 to 40 32 सर 40, 32 sir. 40 38, 32 38 40 40 35. 35 okay next 41 to 45 सर 49 49 43 43 43 45 49 43 45 सर 52, 52 52 54 54 ओके 54 हुआ। और कोई बाकी है ना? और 2 3 4 जन 3 जन बाकी है। हेलो Sir, 18. 18 सर 56 sir.
18 हो गया, 50, 56, फोर नहीं 54 नहीं है 56 54 नहीं है, 56 है। हेलो 44 44। yes चलिए और एक जन बाकी है। सर 33 हुआ 33 33, यादव जी। ओके फाइन, हुआ। Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Next time we will continue. Okay, and we complete our. So you have to continue 15 दिन, 15-20 दिन रहे, Bye, रेगुलर sir. रहो, रेगुलर रहो आप लोग। ओके 15 दिन थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। फाइन, थैंक यू। हेलो सर। बाय सर, बाय सर. बोलो बोलो सर जल्दी बोलो। 28 28 हाँ मी सर अरे कधीपासून लगाया, बोलत होतो हुआ हुआ, हो गया। 28 हो गया. अरे मेरा म्यूट था मेरे को मालूम नहीं था सॉरी ये हो गया, तेरा प्रेजेंट ही कोई और लगाते. ओके ओके फाइन, ओके फ्रेंड्स है ना, हो गया। सर वो आता नहीं है तो भी उसका प्रेजेंट ही लगाते हैं कोई. फाइन, चल सर बाय बाय। बाय